This is reading 19, passage 1. So this is the volume 1 book. We have completed 18 readings and we are on the 19th reading, and every day one passage has been taught and done together. So those who haven't attended these classes, they can look for these recorded sessions. They can ask for any recorded session when they attempt the reading. They can just put in their group and some or the other student who is there will share it. Okay. So this is the reading, and let us see the question types. This is generalizations about the connection between culture and thought. Let's see the question types. Question types are: which paragraph contains the following information? List of researchers and then what they said. And question 10 to 13 are the blanks. Now, which paragraph contains the following information we'll leave to the for the end. Okay, we don't do this first. So there are three researchers. One is Bessette and Masuku, Bessette and Choi, Bessette and Era. Okay, now we'll look for where they are, and there are only 4 questions, so we can quickly see the 4 questions and then we can go to where these names are given. They are actually, these names are there. Each paragraph begins with this combination of names, and so you'll know in which paragraph you'll get these answers. Okay. Geographical location affects people's position on certain arguments. तो ये first है कि geographical location है, मतलब ज्योग्राफी में, मतलब ग्लोब में कहाँ है वो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो लोगों की पोजीशन कुछ आर्गुमेंट्स पे अफेक्ट करती है. एनिमेटेड इमेजेस रिवील डिफरेंट प्रोसेस स्ट्रैटेजीज. जो एनिमेटेड इमेजेस हैं दे रिवील डिफरेंट प्रोसेस स्ट्रैटेजीज. ईस्टर्न पीपल चैलेंज अ डिडक्शन बिकॉज दे नो इट इज नॉट ट्रू. जो ईस्ट के लोग हैं वो चैलेंज करते हैं किसी डिडक्शन को क्योंकि उनको पता है कि ये सही नहीं है. यहाँ पे ना चैलेंज्ड है. ईस्टर्न पीपल फाइंड मोर डिफिकल्टी व्हेन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द सेम ऑब्जेक्ट. ईस्टर्न पीपल को ज्यादा डिफिकल्टी आती है जब उनको सेम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने को बोला जाता है. ओके, सो वी हैव रेड इट ऑल, एंड ये तीनों नाम आपको याद है? जो तीनों नाम लिखे हुए हैं एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लो एंड वील गो टू द पैसेजेस. ओके, Bessette and Masuku, Bessette and Choi, Bessette and Ara. Okay, now we'll go to the passages. यहाँ पे कोई नाम नहीं है, यहाँ पे कोई नाम नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे Bessette and Masuku शुरू हो गया. ओके, अगले पैरे में Bessette and Choi है, ठीक है, और उससे अगले पैरे में Bessette and Ara है. तो ये इन्होंने इजी कर दिया, आपको 3 ही पैरे पढ़ने हैं, आपको चारों आंसर्स मिल जाएंगे. ठीक है. One experiment led by Bessette and Masuku showed an animated video picturing a big fish swimming. तो animated वाली को एक query थी, question था, आपको immediately उसका आंसर पता चलना चाहिए. 7. हाँ, तो 7th का आंसर जो है this is Bessette and Masuku, that is A. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. Animated video picturing a big fish swimming among smaller fish and other sea creatures. Subjects were asked to describe the scene. The Japanese participants tended to focus on the aquatic background, such as plants and color of the water, as well as the relationship between the big and small fish. American participants tended to focus on individual fishes, mainly the larger, more unique looking fish. The experiment suggested that members of Eastern cultures focus more on the overall picture, while members on Western culture focus more on the individuals. ठीक है, उनका फोकस उस पे है, इनका फोकस इस पे है. तो क्या कोई और आंसर आपको लगता है? मैम 9th का Eastern people find more difficulty when asked to identify the same object. Okay. डिफिकल्टी मेंशन नहीं की. हाँ, डिफिकल्टी कहीं मेंशन नहीं की है मैम सो फार. यहाँ पर है इसका आंसर, तो इसका ए ही है, बट क्लैरिटी से नहीं है.
नाइन्थ का आंसर भी क्लैरिटी से नहीं है, पर चलो एनीवेज अगला पैरा पढ़ो. बेसेट एंड चोए. In another experiment performed by Bassett and Choi, the subjects were presented with some very convincing evidence for a position. Both Korean and American showed strong support, and after they were given some evidence opposing the position, the Koreans started to modify or decrease their support. However, the Americans began to give more support to the former argument. The project suggested that in Korean culture, support for arguments is based on context, ideas, and conclusions are changeable and flexible. So an individual may be more willing to change his or her mind. For Americans, they were less willing to change the original conclusion. अच्छा, अब ये जो है, ये वाला जो ऑप्शन देखो, इनमें से कौन सी ऑप्शन है? All people have the same reaction to a sorry 6 to 9 पढ़ रहे ना. Geographical location affects people position on certain arguments. ये पता चल रहा है, यही वाला है. Yes, ma'am. क्योंकि देखो उनकी पोजीशन है आर्ग्यूमेंट पे, ठीक है, उससे इफेक्ट होता है कोरियंस का और अमेरिकन्स का, ठीक है. सो ज्योग्राफिकल लोकेशन अफेक्ट्स पीपल पोजीशन. तो 6 का आंसर बी है, बेसेट एंड चोए. एनिमेटेड का हमने पहले कर लिया, दैट इज ए. ईस्टर्न, ओके, अगला पढ़ते हैं अब. बेसेट एंड आरा डिवाइज्ड एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द थॉट. ये टेस्ट है. To test the thought processing of both Oriental and Occidental worlds. Test subject was given an argument. All animals with furs hibernate. Rabbit has fur, therefore rabbit hibernate. People from Eastern world questioned the argument as not being logical because in their knowledge some furry animals just don't hibernate. आपको पता चल गया कौन सा आंसर है? हाँ, Eastern people challenged the deduction because they knew it is not true. Okay, so 8th वाले का आंसर जो है C है, ठीक है. So 6 का आंसर जो है वो था Bassett and Choi B, then A, then C. दोबारा से करवाना. देखो जो ईस्टर्न पीपल है ना, जो उन्होंने चैलेंज करा क्योंकि उनको पता था कि सारे फरी एनिमल्स जस्ट डोंट हाइबरनेट. चाहे उनको ये बताया गया कि ऑल एनिमल्स विद फर हाइबरनेट, रैबिट हैज फर, देयरफॉर रैबिट हाइबरनेट. ठीक है, उनको आर्गुमेंट दिया अमेरिकन्स को और कोरियंस को कि सारे एनिमल्स विद फर्स हाइबरनेट. फिर उन्होंने बोला कि रैबिट जो है उसकी फर होती है तो रैबिट हाइबरनेट करते हैं. पर ईस्टर्न लोगों को पता था कि ये लॉजिकल नहीं है क्योंकि उनको पता था कि रैबिट हाइबरनेट नहीं करते. पर अमेरिकन जो है उन्होंने बोला कि ये लॉजिक सही है, फरी है तो ये हाइबरनेट करता है, वो मान गए. पर इन्होंने चैलेंज करा, दे डिड नॉट बिकॉज दे न्यू इट इज नॉट ट्रू. सो दैट इज ये वाला था, ये वाला ईस्टर्न पीपल चैलेंज द डिडक्शन बिकॉज दे न्यू इट इज नॉट ट्रू. ठीक है, अब समझ आ गया कि नहीं? यस मैम. Eastern people find more difficulty when asked to identify the same object. अब आपको ये पता चल गया कि ये डिफिकल्टी वाला तो किसी भी पैरे में नहीं दिया हुआ, ठीक है. और जो सेम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की बात है वो सिर्फ इसी पैरे में हुई है. कौन से पैरे में हुई है? ये बेसेट एंड मसूकू. ठीक है, तो दिस इज द आंसर. अगर आपने रिड्यूस भी करना है फ्रॉम समथिंग इट इज नॉट बीन टॉट, सेम उनको दिखाया गया है, जो है सीन है, सेम सीन दिखाया गया है, तो उन्होंने किसी और चीज पे फोकस करा. दे फोकस्ड ऑन द ओवरऑल थिंग, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना. इन्होंने तो इंडिविजुअल फिश पे फोकस करा. अब ईस्टर्न कल्चर है, उन्होंने ओवरऑल पिक्चर पे फोकस करा. तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ईस्टर्न पीपल Eastern people find more difficulty when asked to identify the same object. अब सेम ऑब्जेक्ट, उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट पे तो फोकस करा ही नहीं, ओवरऑल पिक्चर पे फोकस करा है. ये अब पता चल गया कि ये वाला आंसर क्यों है. बेसेट एंड चोए, ये सॉरी ये बेसेट एंड मसूकू क्यों है 9th का? देखो इन्होंने ना किसी एक ऑब्जेक्ट पे ठीक से फोकस ही नहीं करा, इन्होंने ओवरऑल पिक्चर पे फोकस करा. जस्ट गो बैक एंड सी. ये देखो
One experiment led by Bassett and Masuku showed an animated video picturing a big fish swimming among smaller fish and other sea creatures. Subjects were asked to describe the scene. The Japanese participants tended to focus on the aquatic background, such as plants, color of water, as well as the relationship between big and small fish. And American participants tended to focus on individual fish. Fish ही आएगा. Mainly the larger, more unique looking fish. ये ना fish का plural fish होता है. ये आपके ग्राफ में आपको काम आएगा. 2-3 ग्राफ हैं जिनमें fish है. Okay, academic students ध्यान रखो. वहाँ fishes मत लिख देना. ठीक है? It is fish. Okay, ma'am. So because they focus on the overall picture, they will not be able to identify the object when shown again. ये समझ आ गई आपको बात? और किसी से बेसेट एंड मसूकू नहीं होता. 9th का आंसर जो है 6th और 9th का आंसर ए है. और ये वाला है एनिमेटेड वाला आपको बताया था कौन सा है? ए. एंड 6 का क्या है? C. B. 6 का बी है. बी मैम. 6 का बी, 7th और 9th का ए एंड 8th का सी. ठीक है. Now we'll come to the blanks. ये किसी को नहीं क्लियर तो दोबारा पूछ लो अभी, बिकॉज एग्जाम में ये पैसेज आए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. मैम क्लियर तो नहीं हुआ अच्छे से. अच्छा, अच्छे से कर लो, कोई बात नहीं. 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे. सबसे पहला क्वेश्चन था ज्योग्राफिकल लोकेशन अफेक्ट्स पीपल्स पोजीशन ऑन सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स. ये जो 6th का आंसर है ना, ये है बी, दैट इज बेसेट एंड जॉय. मैं आपको बी पढ़ा के वहां से समझा देती हूँ. ये तो हो गया था मैम. ये क्लियर है. ओके. फिर मैम, 7th वाला जो क्वेश्चन है एनिमेटेड इमेजेस, एनिमेटेड वाला भी क्लियर हो गया था. एक ही Yes, में ma'am. एनिमेशन की बात हुई है और किसी में हुई नहीं हुई. यस मैम. ये भी क्लियर हो गया. अब ए है ये. डिफिकल्टी वाला नहीं हुआ मैम. केला डिफिकल्टी वाला उसी से मैंने डिड्यूस करा है. देखो जो ये देखो, जो जापानीज पार्टिसिपेंट्स है ना, दे टेंडेड टू फोकस ऑन द एक्वाटिक बैकग्राउंड सच एज प्लांट्स, कलर ऑफ वाटर एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द बिग एंड स्मॉल फिश. ठीक है. अब उन्होंने फोकस ही नहीं करा फिश पे. अगर उनको दोबारा वो फिश दिखाई जाए वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने उस पे फोकस ही नहीं करा. ओके मैम. हाँ, तो इससे डिड्यूस करा क्योंकि किसी और में भी इसकी बात नहीं हुई डिफिकल्टी ma'am. वाली. ठीक है. ओके तो हाँ, ओके ये थोड़ा डिफिकल्ट है. मैं इसीलिए मैंने आपको बोला है कि इसको अच्छे से समझ लो. अब आपको अगर एग्जाम में ये वाली रीडिंग आए, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है अगर एग्जाम में ये पैसेज आएगा, बिकॉज दिस हैज बीन रिप्रोड्यूस्ड आउटसाइड बाय द स्टूडेंट्स, मे बी कोई एक आध लाइन मिसिंग है वहां पे. इतना कंफ्यूजिंग हो सकता है नहीं होए, बट द आंसर एनीवे इज बेसेट एंड मसूकू. यहाँ एक लाइन लिखी होगी, therefore they cannot identify the fish. तो जो भी है, अगर if shown again कुछ ऐसे लिखा हो सकता है. नहीं लिखा हो तो भी अब आपको आ गया ना ये पैसेज. यस मैम. मैम बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तीनों में हाँ. यही सूट कर रहा था. हाँ, यही सूट कर रहा है. यही है ना, कई बार आपको एलिमिनेशन मेथड भी करना पड़ता है कि और किसी में भी ये फिट ही नहीं हो रहा तो यहीं पे आएगा. ठीक है. That is it. Next is the blanks. Researchers in the Soviet Union wanted to find out how dash and nationality will control the way people think. अब आपके कीवर्ड है सोवियत यूनियन. ठीक है. और नेशनैलिटी है, उसके पहले कुछ आएगा कि 2 चीजें हैं जो कंट्रोल करता है द वे पीपल थिंक. ठीक है. अब हम देखते हैं सोवियत यूनियन रिसर्चर्स कौन से पैरे में है. जी पैराग्राफ. सी मैम. मैम C पैराग्राफ. सी मैम. 5th लाइन. ओके. यहाँ पे देखो सोवियत यूनियन आ गया, रिसर्च प्रोडक्ट आ गया. ठीक है. अफेक्ट पीपल्स वे ऑफ थॉट, द वे पीपल थॉट, ये भी आ गया. ठीक है. उन्होंने बोला हाउ पीपल थिंक, ये भी आ गया. और एक चीज उन्होंने लिख के दी है, नेशनैलिटी और उसके साथ कोई और चीज है. अब बताओ कौन सी चीज फिट होती है? नेशनैलिटी, लिविंग एनवायरनमेंट. वेरी गुड. लिविंग एनवायरनमेंट है. अब आपको समझ आ गया ये लिविंग एनवायरनमेंट है. ठीक है. तो पहला ब्लैंक हमें मिल गया, लिविंग एनवायरनमेंट. नाउ वी कम टू द सेकंड ब्लैंक. Bassett and Ara's experiment shows for Americans, so long as the logic deduction is based on a correct argument, the dash should be right. Okay.
अब हमें ये पता है बेसेट एंड नारा का पैरा कौन सा है, ये आपको पता है? आपको Yes, पता ma'am. है? F paragraph. S. ठीक है, और फिर अमेरिकन की बात हुई है और उन्होंने बोला है कि जब तक लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल कर दूं, लॉजिकल डिडक्शन करेक्ट आर्गुमेंट पे बेस्ड है तो कुछ सही होना चाहिए, डैश शुड बी राइट। बेसेट एंड नारा वाले पैरे में जाओ। मैम लास्ट लाइन Last line. कंक्लूजन। हाँ, Conclusion. कंक्लूजन इज राइट। सो इस ब्लैंक को भी, ये भी आपको इजी लगा? Yes. ओके, चलो कुछ कोई आंसर्स इजी होते हैं, कोई डिफिकल्ट होते हैं, हर रीडिंग में ऐसे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज फिशर thinks Bessett's research is quite valuable because it is conducted in a dash way rather than in controlled environment. अब फिशर देखो, मैम जी पैराग्राफ। वैल्यूएबल रिसर्च है, Yes. G paragraph. जी में फिशर आ गया, तो उसने बोला फिशर थिंक्स बेसेट्स एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बिकॉज हिज रिसर्च ओनली प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शंस। तो कौन सा ब्लैंक में क्या आएगा? Qualitative. Qualitative, okay, rather than controlled environment. Next is future researches on culture's effect on cognitive processing should start with a dash of culture as a variable. अब future की बात हुई है, future results है, future की बात जो है ना 90% of the time लास्ट पैरे में होगा, लास्ट में नहीं है तो फिर उससे ऊपर वाले में होगा। J paragraph। J paragraph. ए में एंड में है। Yes. While studying a variable like culture, it is critical that researcher create a clear definition for what is and what is not considered culture. तो आंसर क्या है? Clear definition. Clear definition. ठीक है, अब ये आपको सारे ब्लैंक समझ आ गए सबको? किसी को कोई क्वेरी? No. किसी को कोई Yes, क्वेरी ma'am. है? First blank, please. First कौन blank सा? मेरे को थोड़ी कंफ्यूज। कौन सा ब्लैंक? First ma'am, 10th. Researchers in the Soviet Union wanted to find out how dash and nationality will control the way people think. Soviet Union researchers C paragraph में बात हुई है, ठीक है? हम C में सीधा चले जाएंगे। Soviet Union dash and nationality है, how people think है, ठीक है? dash and nationality है, how dash and nationality। अब dash में क्या आएगा बेटे, सोचो। Living environment ma'am. और कुछ आइडिया? Yes ma'am. ठीक है, इजी ठीक है, है। समझ आ गया? Yes ma'am. Yes ma'am. Now we'll go to the paragraph headings. ये मैं साथ साथ ठीक कर दूं। पैराग्राफ हेडिंग्स में जाओ। अब हमने ये 4-5 क्वेश्चन छोड़े थे। ओके, नाउ विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कुछ थोड़ा बहुत देखते ही पता होगा ये कौन सा पैरा है। All people have the same reaction to a certain point of view. सब लोगों का सेम रिएक्शन है किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे। Qualitative descriptions are valuable in exploring thought process. Qualitative description अभी बात हुई है, कौन से पैरे में बात हुई है? जी पैसेज। इसका आंसर जी है। ओके, different cultures will affect the description of the same scene. Same scene की बात कहाँ हुई है? डी पैराग्राफ। डी पैराग्राफ। देखो आपको जो एनिमेशन वाला वही है ना, ये जो एनिमेटेड वो फिश वाली बैकग्राउंड दिखाई, जापानीज ने बोला बैकग्राउंड पे फोकस करा, अमेरिकन से इंडिविजुअल फिश पे फोकस करा। Yes ma'am. Yes, ma'am. वही वाला पैरा ये। We thought of young people as widely different at different geographical. Yes, ma'am. E. ये वाला बी पैराग्राफ में है। डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस में जो यंग पीपल, ये अभी करते हैं बी में, ये अभी आपने पहले पढ़ा तो आपको पता है, हम करते हैं। तो ईस्टर्न पीपल आर लेस लाइकली टू स्टिक टू देयर आर्गुमेंट। जो ईस्टर्न पीपल है वो स्टिक करने लेस लाइकली है टू स्टिक, ठीक है, वो स्टिक नहीं करते। तो ये आप देखो ई पैराग्राफ देखो, पहले सबसे मैं आपको ई पैराग्राफ दिखाती हूँ। ई में ना 2 आंसर्स हैं। एक तो उनको गोरियंस और अमेरिकन को सेम एविडेंस दिखाया तो दोनों मान गए, ठीक है। जब उसके बाद जब दोनों बोथ द कोरियन एंड अमेरिकन शोड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दोनों मान गए। तो पहला था ऑल पीपल हैव द सेम रिएक्शन टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू, ये ई हो गया, ये समझ आ गया। फिर उसके बाद जब दूसरा था कि वो स्टिक नहीं करे, कोरियन कल्चर
the project suggested that in Korean culture, support for arguments is based on context, ideas, and conclusions are changeable and flexible. So an individual may be more willing to change his or her mind. So they are less likely to stick. ये भी E है. ये समझ आ गया? Korean people are more willing to change their mind. More willing to change their mind means less willing to stick to their argument. समझ आ गया ये point? बोलो. Yes, ma'am. तो 2 आंसर आपको E मिल गए. एक आपको क्वालिटेटिव वाला G पता था. अब जो था ना वो एक क्वेश्चन था आपका, वो B आंसर है. मैम रिपीट करिए प्लीज. कौन सा रिपीट करूं बेटे, बताओ. मैम जो अभी बताया आपने. अभी तो मैंने 3 बताए. फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट वाला. है. फर्स्ट है सेम रिएक्शन. वो तो बहुत क्लियर है, एक लाइन में लिखा हुआ है. देखो. In another experiment performed by Bessett and Choi, the subjects were presented with some very convincing evidence for a position. Both the Korean and American showed support. Same view था दोनों का. Okay, ma'am. ये हो गया आपका. All people have the same reaction. 6 का फर्स्ट का आंसर हो गया. और 5th है, बाद में कोरियंस है उन्होंने चेंज कर लिया. मतलब वो चेंज कर लिया, इसका मतलब they are less likely to stick. अमेरिकन डटे रहे और वो उन्होंने चेंज कर लिया. ठीक है. तो ये लेस लाइकली टू फर्स्ट एंड 5th का आंसर ई हो गया. ठीक है. और जो बी है ना, वो आंसर है यंग पीपल वाइडली डिफरेंट इन डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस. तो यहाँ यंग पीपल की बात यहीं पे हुई हुई है. यंग बॉय फ्रॉम ए फार्म वुड टॉक अबाउट काउज व्हाइल ए बॉय फ्रॉम न्यूयॉर्क वुड टॉक अबाउट कार्स. तो ये डिफरेंट लोकेशंस में यंग पीपल की डिफरेंट बैकग्राउंड होगी. ये बी है. सो ये है 4th. ठीक है. ओके मैम. तो ये वाला आंसर हो गया बी. एंड एक आंसर जी आपको पता था. और डी है सेम सीन की ये वाली, बेस्ट स्मॉलर फिश बिग फिश की डिस्क्रिप्शन दोनों की डिफरेंट है. ये समझ आ गया आपको? बी है. ये क्वेश्चन था ये सॉरी डी है. ये क्वेश्चन था डिफरेंट कल्चर्स विल अफेक्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम सीन. अब जापानीज ने सेम सीन को बैकग्राउंड पे फोकस करके डिस्क्राइब करा. अमेरिकन ने सेम सीन को फिश पे फोकस करके डिस्क्राइब करा. समझ आ गया? यस मैम. सो ये पैसेज इट वाज स्लाइटली डिफिकल्ट, बट प्लीज डू ऑल दीज पैसेजेस. अभी पीछे जो रीडिंग सैटरडे को आई है, कहीं कुवैत में एक पैसेज आया है, इंडिया में एक पैसेज रिपीट हुआ है, उससे पिछली बार भी एक पैसेज इनमें से रिपीट हुआ था. तो एटलीस्ट आपने कुछ प्रैक्टिस करना ना. यू हैव टू प्रैक्टिस एनीथिंग. तो पहले ये 40 रीडिंग्स कंप्लीट करो, देन लुक टू द इंटरनेट फॉर मोर रिसोर्सेज. डोंट वेस्ट टाइम. पहले सीधा ये 40 कर लो अच्छे से. 40 मीन्स 120 पैसेजेस, 40 कंप्लीट रीडिंग्स. ये कंप्लीट रीडिंग्स कर लो. एक भी पैसेज आपको आ गया तो your time will be saved. You will have more time for other passages. Okay. So it's exactly 10:30. We'll get back at 10:40 with the same link for the speaking session today. Okay. Are you all ready for speaking out? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलना सारे जने चांस लेना. अच्छा. और time, don't waste time in unnecessary talks. We'll focus on covering as many cue cards as possible. Okay. So get back with the same link at 10:40.